Assalamu alaikum. Today we are going to talk about polio virus, and according to the learning objectives we will discuss its properties, and the properties will be covering its structure, family, serotypes, route of transmission, pathogenesis that is implicated in the disease process, its clinical presentation, that how a patient will clinically present to you, its lab diagnosis, and how to prevent it. So, having a look at the brief history of polio virus, before the advent of polio vaccine, several epidemics had occurred between 1948 and 1955. People were avoiding crowds, public gatherings during this time due to the concern about getting polio. In extreme polio cases, respiratory paralysis does happen. So basically, these iron lung respirators were prepared and people were actually kept in them. So this is the case of Martha Lillard. She caught polio in 1953 and she still uses this firm device at nights. So she is a polio survivor of that extreme case. Polio virus belongs to Picornaviridae family, and Picornaviridae family is broadly classified into enterovirus group and rhinovirus. Enterovirus other than poliovirus include Coxsackie virus, echovirus, and hepatitis A virus. So poliovirus is part of human enterovirus C group. All the viruses belonging to the human enterovirus species infect via the gut and are excreted in feces. It is single-stranded RNA virus and is of positive polarity. Therefore, it can be translated directly by host ribosomes to generate viral proteins. The capsid is of icosahedral symmetry around the genomic RNA. There are three poliovirus serotypes that are named 1, 2, and 3 based on different antigenic determinants present on the outer capsid proteins. The host range is limited to primates, and non-human primates include apes and monkeys. So this is the basic structure of poliovirus, and it is showing a wild capsid that is of icosahedral symmetry, single-strand RNA. As we know, it is of positive polarity. The mode of transmission is by fecal oral route. That is the primary mode of transmission, and can also be transmitted by contaminated food or water, close personal contact, and the population at risk group is of infants and young children, especially in situations of poor hygiene. So this is the brief representation of replicative cycle. Now coming to the pathogenesis. The poliovirus enters the oropharynx and then multiplies in the tonsils and lymph nodes of the neck, and then subsequently in pear patches and small intestine. Incubation period ranges from 2 to 35 days. According to up to date, as in Levinson it is mentioned 20-14 days, but according to the recent data from up to date, the incubation period ranges from 2 to 35 days. And after these 3 to 5 days, the virus is shed in stool and can be recovered from the throat swabs of exposed patients. During this period, the patient can be asymptomatic or showing mild virulent symptoms. Later, self-limiting episodes of gastroenteritis, respiratory tract infection, and influenza-like illness can occur. Basically, a bit of vague symptoms. The viremia may subside due to the appearance of antibodies or spread to the central nervous system via bloodstream. Uh, when it is spread to the central nervous system, there is extensive damage to the anterior horn cells of the spinal cord, and that leads to limb paralysis, that is hallmark of poliovirus.
and later it also spreads to the posterior horn cells, also affects motor neurons of the thalamus and hypothalamus. Death usually occurs due to the respiratory paralysis in extreme cases. Okay, now coming to the clinical presentation. The patient can be asymptomatic. That is mostly the case. इस पीरियड में क्या होता है कि शेड तो हो रहा है वायरस इन स्टूल एंड इट कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द थ्रोट सब ऑल्सो. पेशेंट करियर है, वो दूसरों को इफेक्ट कर रहा है लेकिन खुद एसिम्टोमेटिक है. सेकेंडली अबॉर्टिव पोलियोमाइलाइटिस, जो इसकी एक माइल्ड वायरेमिक फॉर्म है. ये क्या होती है 4 to 8% ऑफ केसेस में होती है. अब माइल्ड वायरेमिक फॉर्म हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. गैस्ट्रोएंटराइटिस हो रहा है, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, माइल्ड रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है जो कि यूजली सबसाइड हो जाता है विद इन 1 वीक. अच्छा, कुछ केसेस हैं 1% प्रेजेंट करते हैं एसेप्टिक मेनिंजाइटिस. क्या होगा, जैसे हमें पता है कि नेक का स्पाज्म होगा और इसमें बैक एंड लोअर लिम्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे. अच्छा, मोस्ट सेवियर फॉर्म इसकी होती है पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस. ठीक है, लेकिन ये बहुत ही कम पेशेंट में देखी जाती है. क्या होता है, सबसे पहले पेन स्टार्ट होता है बैक में एंड लोअर लिम्स में, एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है. अच्छा, क्या होता है, इसका हॉलमार्क है फ्लैसिड पैरालिसिस. ठीक है, जब डीप टेंडन रिफ्लेक्स, आहिस्ता आहिस्ता आपने टेंडन रिफ्लेक्सेस देखे भी होंगे और आप लोग सीएनएस में भी प्रैक्टिस भी करे होंगे, तो इसमें क्या होता है आहिस्ता आहिस्ता वो कम होकर ख़त्म हो जाते हैं. सो दैट रिजल्ट्स इन फ्लैसिड पैरालिसिस. अच्छा, रिकवरी मे बी कंप्लीट इन सम पेशेंट्स, लेकिन इफ लॉस ऑफ मोटर फंक्शंस अकर बियॉन्ड 12 months, तो लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी कैन अकर. अगर ब्रेन स्टेम इन्वॉल्वमेंट होगा तो दैट कैन लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग रेस्पिरेटरी पैरालिसिस. दैट इज द यूजुअल कॉज ऑफ डेथ इन एक्सट्रीम केसेस. अब देयर आर 3 forms of paralytic poliomyelitis. Number 1 is a spinal, number 2 is bulbar, and number 3 is bulbospinal. स्पाइनल पैरालिटिक पोलियो के अंदर क्या होता है, जब वायरिमिया स्टार्ट होता है तो माइनर इलनेस स्टार्ट होती है. उसके बाद 2 to 5 days का एसिम्टोमेटिक पीरियड होता है बिफोर द अब्रप्ट ऑनसेट ऑफ द मेजर इलनेस, जिसमें हेडेक, फीवर, मलेज, वॉमिटिंग, नेक स्टिफनेस एंड मसल पेन्स तो होंगे. उसके 1 से 2 दिन बाद फ्लैसिड वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी. फ्लैसिड वीकनेस या पैरालिसिस के साथ साथ क्वाड्रिप्लेजिया भी हो सकता है. लेग्स आर मोर कॉमनली इन्वॉल्व्ड इन द आर्म्स. इसके अलावा ब्लैडर पैरालिसिस भी हो सकता है. और सेकेंडली बल्बर पैरालिटिक पोलियो क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास पैरालिसिस ऑफ दोज मसल ग्रुप्स इनर्वेटेड बाय द क्रेनियल नर्व्स, जिससे क्या होता है डिस्फेजिया, नेजल स्पीच हो जाती है एंड डिस्निया. एंड द थर्ड फॉर्म इज बल्बो स्पाइनल, दैट इज मिक्स्ड बर्बर एंड स्पाइनल इन्वॉल्वमेंट. अब लैब डायग्नोसिस हम किस तरह करेंगे. सबसे पहले वायरस आइसोलेशन. अब वायरस कहाँ कहाँ से रिकवर हो सकता है. इट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द थ्रोट, स्टूल और स्पाइनल फ्लूइड बाय इनोकुलेशन ऑफ सेल कल्चर. So but it is a difficult method, so it is not routinely practiced in the labs. Second, PCR है, polymerase chain reaction. थर्ड हमारे पास है serologic testing. अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक्यूट फेज के अंदर जब पेशेंट को सिम्टम्स आना शुरू करते हैं तो हम इसका एंटीबॉडी टाइटर कराते हैं. ठीक है, उसके बाद सेकेंड एंटीबॉडी टाइटर हम कराते हैं कन्वेलेसेंट फेज में. अपने एक दफ़ा कराया एक्यूट फेज में और फिर दोबारा कराया कन्वेलेसेंट फेज में. कन्वेलेसेंट फेज क्या होता है, इज द पीरियड इन विच द बॉडी रिकवर्स फ्रॉम अ सीरियस इलनेस, इंजरी और सर्जरी. ठीक है, इसमें क्या होगा कन्वेलेसेंट फेज, जिसमें बॉडी रिकवर करी होगी इस इलनेस से. हमें कैसे पता चलेगा कि पोलियो वायरस था. A 4-fold neutralizing antibody titer rise between the acute and convalescent specimen suggests polio virus. अच्छा, अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं. सबसे पहले रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज. अब ये रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज डायफ्रामेटिक मसल पैरालिसिस की वजह से भी हो सकता है, इंटरकोस्टल मसल पैरालिसिस की वजह से भी हो सकता है.
अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की भी इसका कॉज हो सकता है और रेस्पिरेटरी सेंटर इम्पेयरमेंट की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास मायोकार्डाइटिस हो सकता है और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हेमरेज। अच्छा, अब हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हमारे पास दो वैक्सीन है। एक हमारे पास है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, जो कि किल वैक्सीन भी कहते हैं, दैट इज एब्रिविएटेड एज IPV। दूसरी हमारे पास है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, दैट इज OPV। ठीक है, दोनों वैक्सीन क्या करती हैं? इंड्यूस करती हैं ह्यूमरल एंटीबॉडीज को। जब एंटीबॉडी इंड्यूस होगा तो न्यूट्रलाइज करेगी वायरस को और इस तरह से सारा इन्फेक्शन प्रिवेंट हो जाएगा। अच्छा, अब दोनों किल्ड और लाइव वैक्सीन के अंदर तीनों सीरोटाइप्स होती हैं। As we discussed earlier that there are 3 serologic types based on different antigenic determinants on the outer capsid protein, यानी पोलियो वायरस की 3 सीरोटाइप्स होती हैं और दोनों किल्ड और लाइव वैक्सीन दैट इज IPV एंड OPV, इन दोनों के अंदर ये तीनों सीरोटाइप्स मौजूद होती हैं। अच्छा, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं पोलियो वायरस के। एक बड़ा बेसिक सा चार्ट मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया जो हमारे पास इनएक्टिवेटेड है। डिजीज तो दोनों ही प्रिवेंट कर रही हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास लाइफ है वो ज़्यादा अच्छी ट्रांसमिशन को इंटरप्ट कर रही है। ठीक है, IgG भी दोनों ही इंड्यूस कर रही हैं, लेकिन IgA जो है वो हमारे पास लाइफ OPV इंड्यूस कर रही होती है। ठीक है, ज़्यादा अच्छी ट्रांसमिशन इंटरप्ट हमारे पास कौन कर रही है? लाइफ कर रही है। सेकेंडरी प्रोडक्शन में हमारे पास जो है लाइव वैक्सीन दे रही है। इंडस्ट्रियल IgA भी लाइव वैक्सीन दे रही है, उसको रेप्लिकेट भी होने नहीं दे रही। ठीक है, लेकिन जहाँ हमें मसला आ रहा है वो ये कि इट रिवर्स टू वायलेंस वेरी इजीली। जब हमने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था वैक्सीन का चैप्टर, तो उसमें हमने पढ़ा था कि लाइव वैक्सीन के साथ जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि इट कैन रिवर्ट टू वायलेंस। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वायरस मौजूद है लेकिन बड़ा वीकन है, लेकिन किसी भी वजह से किसी भी ट्रिगरिंग फैक्टर्स को लेके वो रिवर्ट हो सकता है। इसके अलावा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ में डिजीज़ कॉज कर सकता है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम पहले ही बड़ा वीक होता है और ये बड़ी फ्रेजाइल होती है, तो इसके लिए हमें प्रॉपर रेफ्रिजरेट करना पड़ता है। लेकिन एज इसका ये क्या है कि इसकी ड्यूरेशन ऑफ इम्यूनिटी ज़्यादा है। ठीक है, अब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंस ये है, जो हमारे पास IPV है वो हम IM ये सबकुटेनियस देते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास OPV है वो ओरल दी जाती है। अब बहुत सारे डेवलप कंट्रीज के अंदर OPV को रिप्लेस कर दिया गया है IPV से, लेकिन हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्री के अंदर अभी तक OPV इज प्रैक्टिस एट बर्थ। लेकिन CDC रिकमेंड करता है 4 डोज सीरीज ऑफ IPV एडमिनिस्ट्रेशन एट 2 months, 4 months, 6 to 18 months and 4 to 6 years। एक बहुत बड़ा रीज़न OPV से IPV में स्विच करने का था वैक्सीन ड्राइव पोलियो वायरस। अब वैक्सीन ड्राइव पोलियो वायरस क्या होता है? ये रेयर स्ट्रेन्स ऑफ पोलियो वायरस है, जो कि ओरल पोलियो वैक्सीन के अंदर जो वायरस होता है उससे जेनेटिकली म्यूटेट होके बन जाते हैं। हमने पढ़ा था ना कि सबसे पहले इंटेस्टाइन के अंदर जाता है वायरस, तो OPV बिल्कुल नेचुरल इन्फेक्शन की तरह एक्ट करती है। तो जब वायरस जाता है इंटेस्टाइन में तो वहाँ म्यूटेट हो जाता है, और वाइल्ड पोलियो वायरस की तरह चाइल्ड उस वैक्सीन वायरस को यानी वैक्सीन ड्राइव पोलियो वायरस को एक्सक्रीट करता रहता है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 to 8 weeks। और इससे क्या होता है, कुछ केसेस के अंदर ये वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो कॉज कर देता है। यानी वैक्सीन ड्राइव पोलियो वायरस वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो कॉज करता है। इस वजह से डेवलप कंट्रीज में इसका यूज़ बंद हो चुका है और OPV को रिप्लेस किया गया है IPV से। अनफॉर्चुनेटली पोलियो इंडेमिक कंट्रीज अब जो पूरी दुनिया में है वो सिर्फ 2 हैं, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। प्रीवियसली नाइजीरिया भी इस लिस्ट में शामिल था, लेकिन अब नाइजीरिया ने इसको कंट्रोल कर लिया है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने स्टिल इसको कंट्रोल नहीं कर पाए। ये एक पोलियो एंड गेम स्ट्रेटजी है कि किस तरह से इसको एरेडिकेट करना है, इंटीग्रेट करना है
और इम्प्रूव करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में इतना प्रॉपरली अभी तक वेरियस रीजंस की वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। नाउ कमिंग टू एक्यूट एंड क्रॉनिक मेनिंजाइटिस। अब मेनिंजाइटिस क्या होता है ये तो हम सबको पता है। बेसिकली जो लेप्टोमेनिंजेस होती हैं, जो टिश्यूज होते हैं जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड कर रहे होते हैं, उनकी जब इन्फ्लेमेशन हो जाए तो दैट इज टर्म्ड एज मेनिंजाइटिस। जब भी आइटिस का वर्ड आता है दैट मीन्स इन्फ्लेमेशन। जब भी किसी वर्ड के एंड में आएगा आइटिस दैट मीन्स इन्फ्लेमेशन। अब मेनिंजाइटिस है तो इसका मतलब है इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ द लेप्टोमेनिंजेस। कैसे पता चलता है? सीएसएफ के अंदर एबनॉर्मल नंबर ऑफ डब्ल्यूसी काउंट आता है। एक्यूट मेनिंजाइटिस के ज़्यादातर कॉजेज क्या होते हैं? बैक्टीरियल कॉजेज होते हैं। इसके अलावा वायरल और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। क्रोनिक मेनिंजाइटिस क्या होता है? ठीक है, ये भी क्या है? सिंड्रोम कैरेक्टराइज बाय द सब एक्यूट ऑनसेट ऑफ meningoencephalitic symptoms and CSF abnormalities which persist for at least 4 weeks। ठीक है, एक्यूट में हमने पढ़ा था hours to days, chronic में हम पढ़ रहे हैं for at least 4 weeks। वही सब चीज़ें हैं, fever, headache, nausea, vomiting। नेक्स्ट स्टिफनेस, लेथार्जी, कंफ्यूजन। अब क्रॉनिक मेनिंजाइटिस के भी इन्फेक्शियस कॉजेज भी हो सकते हैं और नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज भी हो सकते हैं। सो दिस इज अ चार्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ एटियोलॉजीज ऑफ क्रॉनिक मेनिंजाइटिस, and this is another chart to differentiate between CSF findings in viral, bacterial and fungal meningitis. So that's it.